All right, G. How onions became a luxury good in the Philippines. Global inflation is putting a strain on food prices, particularly in low-income countries in Asia. Most likely underlying reasons for this inflation are outside the control of any individual country. These reasons include extreme weather events such as series of typhoons and that swept across Southeast Asia in January 2023 and rising price of fertilizers. Farmers have experienced a rise in costs with no noticeable increase in prices received for many of for their crops. The Philippines is particularly vulnerable to global food price inflation since it has to import huge quantities of rice and other cereals to feed its growing population. In 2022 December, the annual inflation rate in Philippines was 8.1%, the country's highest since November 2008, when the global economy experienced a major financial crisis. Prior to 2022, the annual rate of inflation was typically around 4%. Rapidly increasing prices have hit poor families hard. The cost of living has exceeded any increase in money wages. In the Philippines, onions are a key ingredient, typically forming the base of most dishes of meat, seafood, and vegetables. It is difficult to believe that in 2023, a kilogram of onions was twice as expensive as 1 kg of beef. तो मतलब 1 kg of beef कहाँ है पाकिस्तान में 1800 के आसपास, और अनियन तो मेरे ख्याल से 200 रुपए 300 रुपए किलो है पाकिस्तान में, इससे भी कम है. The chicken meat, for chicken meat, onions were 3 times as expensive per kg. Putting this in perspective, a low paid worker, the cost of 1 kg of onions was more than the minimum wage of a day's, मतलब एक दिन की दिहाड़ी से ज्यादा महंगा है 1 kg of onions. A kg of illegal imported onions was selling for 140 pesos, $11, compared to an average of 40 pesos, $3 in 2022. Locally produced white onions tended to sell below these prices. Red onions, a substitute for white onions, are mainly imported and usually sell for a higher price. It may seem bizarre that in Philippines, red onions are now regarded as a sign of wealth. It has even been reported that brides are choosing red onion bouquets rather than flowers as a way of showing economic and social standing in their families. Pyaz ka bouquet, soche. The rising price has resulted in huge quantities of onions being illegally imported into the Philippines from China and India. These onions are stored in cold warehouses and released onto the market when prices appear to be favorable. The government is well aware of growing prices of food prices, including the price of onions. In January 2023, the government fixed a maximum price called suggested retail price of 60 pesos. Okay. In addition, the president announced that the import of onions previously prohibited could now happen in an attempt to increase market supply. A local economist went further by expressing a hope that other food prices could fall if there was a reduction in tariffs and increase in short-term subsidies for producers and greater incentives for more people to become farmers. It was also reported that the government had set up a partnership with 2 local universities to experiment growing onions and other vegetables using alternative techniques in a controlled environment to increase crops yield. क्या नीचे लगाइए ना, तो नीचे ही लगती है ना पी मैक्स, ऊपर थोड़ी लगती है. मिनिमम प्राइस प्रमोट करने के नहीं लगा रहे, मैक्सिमम है, मैक्सिमम नीचे लगती है. आ जाए. यूज अ डिमांड सप्लाई डायग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट अ सीरीज ऑफ टाइफून्स अफेक्टेड द मार्केट सप्लाई ऑफ क्रॉप्स. ये इससे आसान कुछ जिंदगी में देखा है? बनाए. This is 2025 May June. This is May June 2025 2-3. जल्दी से बनाए. 2-3 बन गया, दिखाएं. यस, यहां प्राइस ऑफ फूड क्रॉप्स, यहां क्वांटिटी ऑफ फूड क्रॉप्स. पूरा लिखने से ना बेहतर रहता है. डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम E1 Q1 P1. टाइफून्स आएंगे, सप्लाई को क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, प्राइस ऊपर P2, क्वांटिटी Q2 S2. नहीं, मार्क नहीं कटेगा जी. डू वी अंडरस्टैंड दिस?
एक स्टेटमेंट, a series of typhoons would shift the supply leftwards, increasing the price from P1 to P2 and reducing the quantity from Q1 to Q2. Does this make sense? ओहो 2 खोल दिया हमने. Where is 2 3? Accurately labeled supply and demand diagram showing a shift to the left of the supply curve, new equilibrium showing higher equilibrium price and lower equilibrium quantity. No need to write anything, but we will still write because sometimes they do require. ठीक है, तो एक स्टेटमेंट लिखने में आपके कोई बहुत ही कम सेकंड्स लगेंगे. डू वी अंडरस्टैंड दिस? इज दिस क्लियर? आ जाए वापस. In the short run, price elasticity of supply of red onions is elastic or inelastic. Justify your answer. जी किधर है रेड अनियंस? जी जी बताइए. इनइलास्टिक होगी एक नंबर. ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर. इनइलास्टिक के साथ वैल्यू भी बता देंगे पीईएस की, इट विल बी लेस देन 1. ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर. कहां लिखा हुआ है रेड अनियंस के बारे में? For white onions are mainly imported and usually sell for are now regarded as a sign of wealth. ये these onions are stored in cold warehouses and released onto the market. डायरेक्ट रेड अनियन के बारे में एज सच नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमें पता है अनियंस क्या है. वो एक तो पेरिशेबल होते हैं. ठीक है, स्कार्सिटी से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पेरिशेबल है, प्रोडक्शन टाइम इनका लॉन्ग है. ठीक है, पेरिशेबल है सो दैट दे कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड्स एंड एज देयर आर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स व्हिच यूजुअली टेक टाइम टू प्रोड्यूस, हेंस उनकी सप्लाई इनइलास्टिक है. द प्रोड्यूसर कैन नॉट change, increase the quantity supplied by a greater amount as compared to an increase in price. Inelastic number मिल गया. Typhoons आगे, meaning that supply is volatile, unpredictable. The candidate nature of agricultural goods means that you cannot simply grow additional red onions. The explanation must refer to how it affects the responsiveness of supply. If the candidate refers to the PES being price elastic, then this can be accepted only if the development is linked to illegal importation and storage of. क्योंकि अगर आप इलास्टिक भी जा सकते हैं, बट देन यू नीड टू जस्टिफाई योर आंसर कि उन्होंने लिखा है कि ये स्टोर भी हो रहे हैं और इलीगली इंपोर्ट भी हो रहे हैं, तो सप्लाई एकदम बढ़ाई जा सकती है. लेकिन ज्यादातर मेक सेंस फॉर इनइलास्टिक. यू नीड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई इज दिस हैपनिंग. With the help of a production possibility diagram, consider the impact on the opportunity cost to a farmer in Philippines of starting to grow red onions. है इनइलास्टिक, पीपीसी है भाई. आंखें खोलो जरा, पढ़ो, दोबारा पढ़ो, बनाओ. Consider the impact of opportunity cost to a farmer in the Philippines of starting to grow red onions. इंक्रीजिंग ज्यादा, हाँ, और फिर दिखानी पड़ेगी बना के. बनाए. यहां ले लेते हैं अदर क्रॉप्स, यहां ले लेते हैं व्हाट, व्हाइट अनियंस छोड़ के वो रेड अनियन चल जाना चाहिए, लेकिन और भी ऑप्शंस हैं उनके पास क्रॉप्स. जी और कोई कह रहा है इसको समझा लेंगे आप? व्हाट? हाँ 3:1. आप ऊपर लेना, उल्टा फिर चलेगा. ज्यादा ना सोचो, इंक्रीजिंग ये दोनों तरफ जाओ.
जी नो नीड फॉर डेफिनेशन, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को शायद एक्सप्लेन करना पड़े। तो आप इधर मेजर करेंगे, ये R1 से R2 बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, C1 से C2। व्हाट एल्स? कंसिडर द इम्पैक्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 2 मार्क्स मिलने चाहिए। ये क्या चक्कर है? कंसिडर द इम्पैक्ट, कंसिडर व्हाट इज द पिवट, व्हाट इज द पिवट इन द क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर साइड ऑफ द क्वेश्चन। अदर, क्योंकि 4 मार्कर हमें अब पता है कि क्या होता है दूसरी साइड, और कंसिडर आ गया। कंसिडर द इम्पैक्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू अ फार्मर। इसका क्या मतलब हुआ कि वो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, डिक्रीजिंग है। इनिशियली जो पहले सूटेड रिसोर्सेज हैं वो जाएंगे, तो शुरू में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होंगी और बाद में ज्यादा होंगी। तो यू नीड टू मेंशन इट, यू नीड टू शो एन इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और मेंशन करना है कि शुरू में इनिशियली, क्योंकि ये कह रहा है कंसिडर द इंपैक्ट ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो इनिशियली opportunity cost will be lower. Why lower? Because which are more suitable, पहले वो जाएंगे, which can be easily substituted. Those factors of production which can be easily substituted will be shifted initially. Hence, the opportunity cost initially will be low, and then eventually the factors of production which are not suited, which are not easily substitutable, will have to be shifted from the production of other crops to red onions. Hence, the opportunity cost is likely to increase. तो increasing opportunity cost का जिक्र मेरा ख्याल से जरूरी है। ये आपको लग रहा है, ये आपने खुद कंसिडर, ये सोचा था कंसिडर द इंपैक्ट इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला? हाँ, तो फिर वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बढ़ाएंगे। देखते हैं। Correctly labeled axis, one must be red onions. PPC touches both axes, either straight line or concave, दोनों चलेगा। एक नंबर मिल गया। Initial production combination showing all resources are used to produce the other good with 0 onions being produced. आ गया अंडा हमारा। Were onions being produced initially? कैसा? This is the level of vigilance you must have. क्योंकि इंडोनेशिया में या फिलीपींस जो भी है, उधर तो बन ही नहीं रहे थे रेड अनियंस। ठीक है, तो हमें कहां से शुरू करना चाहिए था? अदर क्रॉप्स इधर से। इनिशियली हम यहां थे C1 और ये 0 था। फिर जब आप इधर जाएंगे ये कम होगा। ये देख रहे हैं द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। इस बात को समझे, क्योंकि इनिशियली 0 अनियंस, द सेकेंड प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन शोइंग इंक्रीज्ड आउटपुट ऑफ अनियंस एंड रिड्यूस्ड आउटपुट ऑफ द अदर गुड, और इसके नंबर थे। तो पहला x यहां था और y यहां था। डू वी अंडरस्टैंड दिस थिंग? Maximum of 1 mark for the analysis if the initial production choice is not at the starting point. दे दें अपने आप को नंबर 3 में से एक। उसने बोला एनालिसिस के नंबर है भाई, एक नंबर है वैल्यू। हाँ जी, डू वी गेट इट? देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, opportunity cost will rise greater the volume of red onions. Relevant size of opportunity cost will depend on the, वो हमने बता दिया इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला। तो 1 में से 1, टोटल कितने मार्क्स आए? अभी तो आप कह रहे थे कि सर ऐसा आ जाए मजा आ जाए। आसान है मुश्किल है? देखिए उसने कितनी लंबी साइंस सोची। ये हम कभी सोच भी सकते थे? ठीक है, डिलिबरेटली मैंने आप लोगों को नहीं बताया। ठीक है, आ जाए आगे। Assess whether a suggested retail price is the best way of stabilizing onion prices in the Philippines. क्या करेंगे? सजेस्टेड रिटेल प्राइस उसने ऊपर लिखा था कि पी मैक्स को सजेस्टेड रिटेल, ये पढ़े। द गवर्नमेंट फिक्स्ड अ मैक्सिमम प्राइस कॉल्ड रिटेल प्राइस ऑफ इतनी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ अनियंस।
जी क्या करूं, जल्दी से बता दें। पी मैक्स को जल्दी से क्विक डेफिनेशन एंड दिस इज द बेस्ट वे, इससे अच्छा कुछ नहीं। क्या एडवांटेज है? प्राइस कम होगी, अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी, अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। प्याज खा के क्या लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ना है, लेकिन चलो हाँ कह लो, बहुत फार फेच्ड है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी, प्राइसेस कम हो जाएंगी, कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, मेक सेंस? नहीं भाई ये फारिग है। शॉर्टेज सबसे रेलेवेंट है, और ब्लैक मार्केट्स उधर वो कह रहे हैं ब्राइड्स भूखे में रख रही हैं गोश्त से, और उससे ज्यादा महंगा है। यही तो मुसीबत है। ठीक है, डिमांड ज्यादा हो जाएगी, पहले ही ज्यादा है, और सप्लाई कम है, बस दैट्स इट। नहीं, शॉर्टेज इज अ डिफरेंट पॉइंट, ब्लैक मार्केट इज अ डिफरेंट। यस एंड दिस इज अनदर पॉइंट, दीस आर 2 पॉइंट्स। ठीक है, और बताएं, व्हाट एल्स? जी आप बताएं, नेगेटिव्स क्या थे पी मैक्स के? और अगर इलास्टिक हुआ तो बहुत ज्यादा शॉर्टेज आ सकती है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, फिर इन्फोर्समेंट कॉस्ट, इन्फोर्समेंट कॉस्ट होंगी, जाके देखना पड़ेगा लोग सस्ता बेच भी रहे हैं या नहीं बेच रहे, गवर्नमेंट का ऊपर और खर्चा हो जाएगा। ठीक है, बस दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। आई एम राइटिंग दिस डाउन, वी आर जस्ट राइटिंग, दैट्स इट। नहीं बस, यस, दिस इज द थिंग, इट सेज इट इज द बेस्ट वे ऑफ स्टेबलाइजिंग। अच्छा, और फोकस किस पे करना है? फोकस किस पे करना है, एक और चीज, स्टेबलाइजिंग अनियन प्राइसेस। तो ये हो गया बफर स्टॉक स्कीम्स, एक ऑप्शन है हमारे पास। दूसरी इंपोर्ट्स भी हैं, इंपोर्ट्स भी हैं क्योंकि इंपोर्ट्स ज्यादा रेलेवेंट है इस केस में। ठीक है, बफर स्टॉक, हाँ कोल्ड वेयर हाउसिंग की भी बात की है, नए टेक्नोलॉजी वो उसके लिए यूनिवर्सिटीज वाली। ठीक है, बफर स्टॉक के साथ चलें, जो आप कहेंगे उसके साथ जाएंगे। हाँ, सप्लाई आ जाएगी, प्राइसेस गिर जाएंगी, सप्लाई बढ़ती। वो मैं नहीं बता सकता। हाँ, बफर स्टॉक कर लें, चले आ जाए। यस, वो तो कर ही रहे थे ना, वो पॉलिसी, एज अ पॉलिसी। हाउ अबाउट सब्सिडीज, ये भी एक पॉलिसी है भाई, ये भी एक पॉलिसी है सब्सिडीज। चलें बफर स्टॉक के बारे में लिखते हैं, एंड देन हम ये कंक्लूड करना है कि ये बेस्ट है या नहीं है। चलें फिर आ जाए, बट रिमेंबर दिस इज अ 6 मार्कर, नॉट अ 12 मार्कर। चलें जी आ जाए। द सजेस्टेड रिटेल प्राइस, और आप फीड करते रहे मुझे साथ साथ, द सजेस्टेड retail price, I'll stop the video and I'll start it again when we are done with this. इधर इधर सबर, ये बेस्ट मेथड। आ जाए जी, तो और बैठे रहें, और ये बंद ना करें, पैक कोई ना करे कोई चीजें, यू नो आई हेट इट। चलें जी आ जाए। तो हमने किया क्या है, हमने यहां तक क्या किया है, पी मैक्स की तारीफें की हैं, पॉजिटिव्स ऑफ पी मैक्स आ गए, क्योंकि वर्डिंग बेस्ट मेथड कह रही थी, तो हमें बेस्ट मेथड के लिए लीव जाए। हाँ जाए जाए, क्लास ओवर होगी आपके लिए, जाए जाए जी। पी मैक्स के नेगेटिव्स आ गए,
ये क्या आ गया, ये हम एक ऑल्टरनेट लेके आए क्योंकि बेस्ट मेथड कह रहा था, तो ये क्या है, ये बफर स्टॉक्स को हमने उसके पॉजिटिव्स बताए और फिर हम बफर स्टॉक्स के लेंथ क्या हो गई है, 1.5, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, दिस इज इवैल्यूएशन। आ जाए जी, लेट्स गो। Set below the equilibrium price can stop sellers from charging excessively high prices when limited, especially during harvest failures or supply chain disruptions. By capping prices, the government can ensure red onions remain affordable for lower income households. ये हमने बात कर दी, stabilizing demand, avoiding volatile reactions to price spikes. A legal price cap can reduce incentives for traders to hoard onions and sell them later at inflated. ये बड़ा अच्छा पॉइंट है भाई। सारा कुछ टारगेटेड किस पे, हमने जब इसके पॉजिटिव नेगेटिव बता रहे थे, हमने एक नेगेटिव के वक्त क्या किया है, प्राइस स्टेबलाइजेशन की तरफ गए। इसने हर पॉइंट को किधर लेके गया, किसकी तरफ लेके गया, प्राइस स्टेबलाइजेशन। तो फोकस क्या था हमारा, वो क्या था, अम्ब्रेला, स्टेबलाइजिंग अनियन प्राइसेस। उसने ये नहीं पूछा बेस्ट तरीका है खाली, उसने पूछा फॉर स्टेबलाइजिंग प्राइसेस। वी मिस्ड ऑन दैट। हम अपने अगर आंसर में जाएं, हम वो मिस कर रहे हैं। It provides confidence to the public that government is actively managing food inflation, stabilize expectations. हाँ जी, however, said below can lead to persistent shortages and long queues for onions. Illegally at higher prices, excess demand, reducing effectiveness. Farmers may cut back on onion production if they cannot cover cost and reasonable profit, worsening long-term supply. Monitoring and enforcing of the maximum price requires government resources without proper enforcement. Enforcement, ये अपने सारी बातें कर ली थी more or less negatives में. If only benefits or problems of PMAX are considered, then maximum 2 marks. 3 marks for at least one alternate policy to stabilize onion prices in the Philippines. The government can provide subsidies, buffer stock scheme, removal of tariffs, irrigation और investment में हमने buffer stock को select किया था, ठीक है। एनालिसिस को अपने आप को नंबर दूं, आप बताएं कितने देने चाहिए। अच्छा, फिर evaluation भी देख लें एक ही दफा। A suggested retail price is the best way of clearly consider किया, ये तो हमने बता दिया। When compared to an alternate policy, evaluation no awarded unless the candidate has considered the benefits and disadvantages of maximum price and an alternate. अगर आपने दो ऑप्शन नहीं दिए तो फिर evaluation में आपको क्या मिलेगा, अंडा। अगर आपने खाली सिर्फ बता दिया, और ये alternate का समझ आया किस तरह लाना है, किस तरह लाना है, बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि उसने बोला था। वापस आए, if I was the examiner, no, I would give myself, क्योंकि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थे, इसमें हमने प्राइस स्टेबलाइजेशन की बातें बहुत ज्यादा कर दी, और इसके एंड पे दिस मे रिजल्ट इन प्राइसेस बीइंग मोर वोलेटाइल इंस्टेड ऑफ बीइंग, ये एक लाइन हमें हल्का सा बचाएगी, लेकिन इससे पहले हमने कोई भी प्राइस स्टेबलाइजेशन की बात नहीं की। 4 में से मैं अपने आप को दे रहा हूं 2, ठीक है। अगर स्ट्रिक्ट एग्जामिनर होगा, यस 3 दे देगा, लेकिन एक एक काटेगा, ठीक है। आ जाए, इसमें से जाएं 2 में से 2 इवैल्यूएशन, क्योंकि एटलीस्ट बैलेंस थी और हम यहां पे प्राइस फोकस कर रहे थे। सो दिस इज अ 4 आउट ऑफ 6 लीनियंट हुआ, तो यू कैन गेट 5 आउट ऑफ 6 एज वेल। लेकिन एक गलती हमने की, हम अम्ब्रेला भूल गए। चलें जी, दिस इज वे वी स्टॉप। बात को इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे।